हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ नवंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are a government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each. Then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English student, English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. Alright friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer. This will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant. So I urge you to go and download and check our plans. तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपके लिए। तो आइए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली असाइनमेंट्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? क्वार्टरली असाइनमेंट्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशिया की। तो एशिया में आपको याद रखना है, जो ये एशिया की रैंकिंग है ना, इसमें इंडिया की 118 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करा गया है, इंडिया की। और अगर हम चाइना की बात करें तो 126 यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना लिस्ट की गई इस क्वार्टरली एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। टॉप किसने किया एशिया में? तो वो रहेगी आपकी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इन्होंने टॉप किया, एंड ये कौन सी बार? 4th टाइम इन्होंने टॉप किया है। ठीक है, 4th कंसेक्यूटिव टाइम इन्होंने टॉप किया है इन क्वार्टरली एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये हमने बात की थी एशिया की। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में किसने टॉप किया? तो वर्ल्ड में टॉप करने वाली जो यूनिवर्सिटी बनी है वो है MIT, कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये 10th टाइम पिछले 10 साल से लगातार इन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है, क्वार्टरली असाइनमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये MIT कहाँ पे है? ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहेगी। तो इनको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों डाटा हैं। एशिया की NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और वर्ल्ड में टॉप किया MIT ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीड्स, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स के बारे में। मतलब अगर मुझे A से B तक सामान को पहुंचाना है, पार्सल करना है, तो एक कितना मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कितना अमाउंट लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं इसमें कैलकुलेट करने के। तो उसमें पूछा गया कि किस स्टेट ने टॉप किया आपके लीड्स इंडेक्स में, किसके द्वारा रिलीज़ की गई। नॉर्थ ईस्टर्न और
हिमालयन रीजन में किसने टॉप किया, और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो कौन सी स्टेट टॉप पे रही आपके लीड्स के इंडेक्स में। तो अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो याद रखना गुजरात ने टॉप किया है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन रीजन की बात करें तो कौन टॉप करेगा आपका, वो टॉप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली ने टॉप किया आपका लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में, जो कि रिलीज़ किया जाता है ENY LPP के द्वारा, अर्न्स्ट एंड यंग LPP के द्वारा इसको रिलीज़ करा जाता है। तो ये कुछ डाटे आपको याद रखने हैं। लीड्स की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। आ गया यहाँ पर गुजरात ने टॉप स्लॉट को रिटेन किया इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स की। ये रिलीज़ किया जाता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। ये पहला बार या पहला एडिशन कह सकते हैं इसका, मतलब 2021 में पहली बार ये आपका डाटा आया है या इंडेक्स आया है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ये रिलीज़ किया जाता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसमें टोटल 30 कंट्रीज़ का डाटा लिया गया, जिसमें से जो रैंक रहेगी इंडिया की वो है 18वीं। आउट ऑफ 30 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक रहेगी 18th। ठीक है, इसमें जो टॉप करने वाली स्टेट बनी है वो है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद आपकी न्यूजीलैंड, फिर पोर्चुगल। टॉप पे रहेगी नॉर्वे। पूछा जाए तो किस कंट्री ने टॉप किया ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, वो रहेगा नॉर्वे। ठीक है, 75 इंडिकेटर्स पे आपकी बात की जाती है, जैसे आपके एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, क्रिमिनल जस्टिस, हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू मेडिसिन, डेवलपमेंट, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है या नहीं उस एरिया में, वहाँ पे वो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है या नहीं, वो बन रही हैं या बन रही, किस हिसाब से लोगों को दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक रहेगी 18 और टॉप करने वाली कंट्री बनी नॉर्वे। ये डाटा पहली बार रिलीज़ किया गया 2021 में, और किसके द्वारा, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। 2022 की हम इसमें बात करेंगे, और ये रिलीज़ किया गया है जर्मन वॉच इन एसोसिएशन विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इनके द्वारा ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग COP26 के दौरान इसको रिलीज़ किया गया था। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसकी COP26 की हुई थी उनके पास। अगर मैं आपसे पूछूँ COP27 को होस्ट कौन करेगा, तो वो करेगी इजिप्ट। और इसी को अगर मैं COP28 कह दूं तो COP28 को कौन होस्ट करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनको होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया था बाय जर्मन वॉच इन एसोसिएशन विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और दूसरा एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP26 के दौरान। द फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस जो आपकी इसमें रहती हैं टॉप 3, वो बेसिकली खाली थी, क्योंकि किसी भी कंट्री ने अभी अप टू द मार्क जो काम करना था वो नहीं करा है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जो प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है लोग उसमें फंड नहीं कर रहे, क्योंकि अभी देखिए अब कोरोना भी आ गया, तो मेडिकल इश्यूज़ हैं, लोगों को लोन्स इतने ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से जो बजट बनता है वो सारी चीज़ों को देख के बनता है। तो कंट्रीज़ अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब इन्वायरमेंट पे नहीं कर रही हैं, जो कि इन्हें करने थे, इन्होंने जो पहले गोल सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली टॉप 3 का वो आपकी जो स्पॉट्स है इस इंडेक्स में खाली रहता है, इसी रीज़न की वजह से कि कोई अपना 100% नहीं दे रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर पूछ ले कि वर्स्ट परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, तो वो है सऊदी अरेबिया। इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो जो वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा वो आपका सऊदी अरेबिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी में आपके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया ने जो इंडिया की रैंक रहेगी 3rd टाइम, इसकी 10th रैंक रही है 2020 में, 2021 में और 2022 में इंडिया की रैंक 10th ही रही है। तो इंडिया के लिए ये हैट्रिक हो गई इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा एक सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे को लॉन्च किया ऑन स्मार्ट पुलिसिंग। ठीक है, आई रिपीट, एक
सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे को लॉन्च किया गया ऑन स्मार्ट पुलिसिंग, किसके द्वारा? इंडियन पुलिस फेडरेशन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चलिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स आफ्टर स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स पुलिसिंग के द्वारा लॉन्च करने, ये स्मार्ट पुलिसिंग लॉन्च करने के 7 साल बाद पूछा जा रहा है कि अभी 2021 में वो कौन सी स्टेट रहेगी जिसने टॉप किया है इन द स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। सबसे अच्छा काम कौन सी स्टेट की पुलिस कर रही है, आपको से ये पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। बताइए कौन सी स्टेट कर रही है सबसे अच्छा काम? तो वो रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश की। टॉप किया है इन्होंने, इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। पहली, दूसरी हो जाती है आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब ये तो हो गया बेस्ट काम, लेकिन अगर जो वर्स्ट परफॉर्मर रही वो कौन सी रहेगी? बिहार एंड उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्स्ट परफॉर्मर है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। ये चीज़ हो गई। अब आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। स्मार्ट एस होता है आपका स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम होता है आपका मॉडर्न एंड मोबाइल, ए होता है अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर होता है रिलायबल एंड टी होता है टेक सेवी। टेक सेवी होता है मतलब आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, आप टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी से आपके साथ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो IPF सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे ऑन स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश तेलंगाना ने टॉप किया, वर्स्ट परफॉर्मर रहे बिहार यूपी। ये रिलीज़ किया जाता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। एंड स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया इन स्मार्ट पुलिसिंग परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स की, जो कि ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ब्राइबरी क्या होता है? आपको ब्राइब करना, किसी को अपने काम के लिए पैसे देना कि हमारा काम जल्दी करा दे, ये बहुत गलत काम होता है, ठीक है। तो इसको इंडिया की क्या रैंक रही हम देखें 2020 और 2021 से कंपेयर करेंगे। 2020 में इंडिया की रैंक थी 77 और इंडिया की अब रैंक 2021 में हो गई है 82। मतलब इंडिया 5 स्पॉट नीचे और गिर गया है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में जो ब्राइबरी है वो बढ़ गई है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है। तो ये एक बुरा डाटा है इंडिया के लिए, एक सैड न्यूज़ कह सकते हैं। आपको याद रखना है 2021 का डाटा, जो कि क्या रैंक रहेगी इंडिया की? 82 रैंक रहेगी इन द ट्रेस के ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में 2021 के, जो कि ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक 82 और 2020 में इंडिया की क्या रैंक थी? 77, 5 स्पॉट का डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 की। ये डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड क्या है आपको इसको ऐसे समझना है कि इंडिया ने 2015 के जो क्लाइमेट गोल थे उसके हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स पे डिसाइड किया था, कुछ स्कीम्स डिसाइड किया था कि हम ऐसे आगे फ्लो में चलेंगे। अब उन प्रोजेक्ट्स पे निगरानी रखने के लिए कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग उनकी हो रही है नहीं हो रही, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेट करके उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना था, क्या उन पे प्रॉपर वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब जैसे कितना सिंपल एग्जांपल, जो भट्टे होते हैं, जैसे आपकी जो ईंटें बनाई जाती हैं, उसमें क्या होता है? हीट करना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होगा? पॉल्यूशन क्रिएट होगा काफ़ी। तो उस पॉल्यूशन का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है? इस पॉल्यूशन का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। ये तो सिर्फ एक फैक्ट्री की बता रहा हूँ, बाकी फैक्ट्री में जो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर्स हैं, क्या उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब जैसे मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री है एंड वो यमुना के पास में है, वो क्या करती है? अपना सारा टॉक्सिक यमुना में बहा देती है। तो वो उनको नहीं करना। उसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नहीं है कि आप अपने केमिकल टॉक्सिक्स को किसी रिवर में या किसी नियर बाय वाटर बॉडी में ऐसे बहा दो, नहीं। उसकी जगह आपको इसको प्रॉपर पहले ट्रीट करके इसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको रिमूव करके फिर जो आपका वेस्ट वाटर बचेगा उसको आपको यहाँ पे यमुना में या उस वाटर बॉडी में डिप्लॉय करना है। तो ये सारे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के SDG के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन पे प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड को रिलीज़ किया गया। किन के द्वारा? डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि वाइस चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के, उनके द्वारा इस डाटा को रिलीज़
करा गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इसमें पूछा जाए तो कौन सी स्टेट सबसे अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी सिटी सबसे अच्छा वर्क कर रही है, तो आपको याद रखना है शिमला अभी टॉप पोजीशन पे, इसने नंबर 1 स्पॉट सिक्योर किया है। सेकंड पोजीशन पे रहेगी आपकी कोयम्बटूर सिटी और थर्ड पे रहेगी चंडीगढ़ सिटी, जो काम अच्छा कर रहे हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 के मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड्स के बारे में। मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड क्या होता है आपका, कि मतलब उन्होंने इंडिया में लोगों का टाइम सेव करा, टाइम सेव के साथ साथ उन्होंने उनकी लाइफ को ईजी बनाया। ईजी लाइफ बनाने में जो हेल्प करता है वो आपके पर्पसफुल ब्रांड में आ जाता है। अब ये पर्पसफुल ब्रांड भी आपके दो तरीके के हो गए, एक तो हो गए नॉन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एक हो गए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इन दोनों कैटेगरी में आपको देखना है कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा रहा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड्स 2021 इंडिया की बात किसके द्वारा की गई, किन के द्वारा रिपोर्ट किया गया, कैंटर्स ब्रांड जेड इंडिया, इनके द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया। और इन्होंने बताया, आपको याद रखना है, अमेज़ॉन ने टॉप किया है आपका ये मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड रहेगा इंडिया का इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इन तीनों सेक्टरों में आपको याद रखना है अमेज़ॉन ने टॉप किया। फिर अमेज़ॉन के बाद आपका आ जाता है जोमेटो, जो आपकी फूड डिलीवरिंग कंपनी है, और जोमेटो के बाद आ जाता है आपका यूट्यूब। इन्होंने ये तीनों टॉप पे रहेंगे आपके मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड्स इन इंडिया में, जो कि कैंटर्स ब्रांड जेड इंडिया के द्वारा डाटा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। अभी ये पॉवर्टी के ऊपर आपका एक डाटा है कि किस स्टेट में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, और ये रिलीज़ किया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, याद रखना, नीति आयोग के द्वारा आपका पॉवर्टी इंडेक्स पे बात की गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें आपको स्टेट याद रखनी है जिसमें लीस्ट पॉवर्टी है और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। ये दो डाटा याद रखना। लीस्ट पॉवर्टी कहाँ पे है? केरला में, और केरला में सिर्फ 0.71% की पॉवर्टी देखने को मिलती है। और जो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रहेगी जिस स्टेट में, वो है आपकी बिहार। आई गेस ये 50% प्लस इसमें पॉवर्टी रहती है। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखी जाती है हमें बिहार स्टेट में। बिहार के बाद फिर झारखंड आ जाता है आपका। ठीक है, केरला के बाद अगर देखे जाए लीस्ट पॉवर्टी में गोवा आ जाता है, जिसमें 3% के कुछ अराउंड पॉवर्टी रहती है, 3.76%। देन सिक्किम विथ 3.82%। ऑलराइट, तो सबसे कम पॉवर्टी कहाँ पे? केरला में देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी हमें सबसे कम केरला में और सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलती है। और ये डाटा कौन बताता है? नीति आयोग के द्वारा भी हमें डाटा बताया गया। और ये जो डाटा कंपेयर किया गया ना, ये 2015 और 2016 में जो आपका नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके बेसिस पे उससे ज़्यादा कंबाइन करके, उससे लिंक करके ये डाटा निकाला जाता है कि केरला में सबसे कम पॉवर्टी है और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुअरेस्ट स्टेट्स कौन सी है, बिहार, फिर झारखंड, फिर यूपी, एमपी, मेघालय, और जिसमें सबसे कम पॉवर्टी आप देखने को मिलेंगे केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। और ये डाटा किन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा डाटा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 एक्सेस टू सीड्स इंडेक्स। ये किन के द्वारा रिलीज किया? वर्ल्ड बेंचमार्किंग अलायंस के द्वारा इसको डाटे को प्रोसेस करके रिलीज किया जाता है। ये है क्या? एक्सेस टू सीड्स इंडेक्स। आप इसको ऐसे समझिए कि इंडिया एज पर 2021 के एक्सेस टू सीड इंडेक्स, ये 3rd एडिशन रहता है इस रिपोर्ट का। एंड इसमें क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द 6 साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द डोमेस्टिक सीड सेक्टर। ठीक है, अपने डोमेस्टिक सीड सेक्टर में इंडिया इन्वेस्टमेंट लेती है फ्रॉम साउथ एज वेल एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि एक बहुत अच्छा डाटा है। इंडिया के जो सीड्स है, बेसिकली अगर व्हीट को बोला जाए, व्हीट के सीड्स को, गेहूं को इंडिया का बहुत अच्छा सीड्स माना जाता है। इसीलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ के सीड्स को अपने बाहर भी इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो 2021 के एक्सेस टू सीड्स इंडेक्स की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द अमंग 6 साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है इन देयर डोमेस्टिक सीड सेक्टर फ्रॉम द ग्लोबल सीड इंडस्ट्री।
ऑलराइट, याद रहेगा बेसिकली वीट पे बात की जाती है, वीट को फेमस माना जाता है काफ़ी। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बेंचमार्किंग एसोसिएशन या वर्ल्ड बेंचमार्किंग अलायंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 की रिपोर्ट के बारे में, जो कि रिलीज की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट सजेस्ट क्या कर रही है? इसमें जो डाटा वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, उन्होंने बताया कि 2015 से लेकर 2021 तक ये वार्मेस्ट टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म वाला टाइम पीरियड रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें गर्मी को देखने को मिली है ऑन रिकॉर्ड। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें गर्मी देखने को मिलती है। अब जैसे गर्मी कैसे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। तो ये जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है। अगर ये हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो गर्मी भी बढ़ती जाएगी। गर्मी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? हमारे पोलर आई कैप्स कम, वो बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगा तो सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अगर गर्मी बढ़ रही है तो वेरियस जगह पे आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारा रीज़न रहता है आपका। ठीक है, तो ये डाटा कहाँ रिलीज़ किया गया? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 की रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया। ये एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया है अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इन्होंने बोला कि जो इंडिया का टारगेट है ना कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो 2070 रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने को कितना अपना जीडीपी पे वर्क करना पड़ेगा, इनकी क्या जीडीपी रहेगी अगर इनको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है 2070 तक, हमें अगर कार्बन न्यूट्रल जाना है तो कैसे क्या डाटा रहेगा, कितनी चीज़ों पे हमें बात करनी पड़ेंगी, वो सारी। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ये ग्रीन न्यू डील होगी ना आपकी, इससे हमें कार्बन नेट न्यूट्रल बनना है, कार्बन जीरो क्रिएट करना है 2070 तक। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, इंडिया $1 ट्रिलियन जीडीपी में ऐड करेगा 2030 तक। फिर इसी को 15 ट्रिलियन डॉलर कर दो, ऐड करेगा 2070 तक। और इंडिया के पास पोटेंशियल है कि ये 50 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट कर सके इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए। तो ये डाटा क्रिएट किया गया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहना है आपको याद, वो है ये ईयर, कि किस ईयर तक इंडिया ने कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की है, कि मतलब हम जीरो कार्बन अचीव करेंगे किस ईयर तक? 2070 तक। और ये बताया, बोला किसके द्वारा रिपोर्ट गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER सर्वे की, जो कि रिलीज की गई विलिमा वाधवा जी के द्वारा। अब ये विलिमा वाधवा जी कौन है? ये डायरेक्टर हैं कहाँ की? एसर सेंटर की ये डायरेक्टर रहेंगी। इनके द्वारा एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे को लॉन्च किया गया। ये क्या है आपका, क्या कहता है ये सर्वे रिपोर्ट? आइए देखें। एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो बच्चे पहले गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल होते थे ना, उनका डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2021 और 2020 के कंपैरिजन में। इनके अकॉर्डिंग 2020 में देखें तो जो बच्चों का एनरोलमेंट रेशो था, जो परसेंटेज थी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल होते थे, वो था आपका 65.8%। लेकिन 2021 में ये बढ़कर आपका 70.3% हो गया। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ये रीज़न क्या रहेगा, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों जा रहे हैं? एक तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की थोड़ी कंडीशंस बेटर होती जा रही हैं। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अब कोरोना की वजह से जैसे लॉकडाउन लगा, बहुत लोगों की रोजी रोटी पे इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी फाइनेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल कम चार्ज लेते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों का, एज वेल एज प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चार्ज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल से हटा के अब पेरेंट्स बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, जिसकी वजह से 65.8% से बढ़ के 70.3% एनरोलमेंट रेशो हो गया। तो ये डाटा कहाँ पे आया? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में आया, और जो कि रिलीज की गई थी विलिमा वाधवा जी के द्वारा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज़ 2000 से 2050। ये डाटा रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनमें टोबैको यूज़ की बात की गई है हमें, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है कि जो टोबैको यूज़ है ना, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में 1.3 बिलियन पीपल टोबैको को यूज़ करते थे या टोबैको के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे। यही डाटा अगर 2020 में देखें तो ये 2015 में 1.232 बिलियन था और 2020 में ये 1.3 बिलियन हो गया। दैट मीन्स जो टोबैको यूज़ में कमी देखने को मिल रही है हमें विद टाइम, और ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है आपको। और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक जो ये डाटा होगा ये कम होके और 1.27 बिलियन रह जाएगा। मतलब जो टोबैको यूज़र्स होंगे वो और कम हो जाएंगे विद टाइम 2025 तक। अगर हम टोबैको की बात कर रहे हैं तो उस कंट्री का नाम बताओ अभी जिसने रिसेंटली टोबैको यूज़ बंद कर दिया है, कि जो बच्चे अब वहाँ पे बॉर्न होंगे उनको टोबैको यूज़ नहीं किया जाएगा, वो वहाँ पे परचेज नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कंट्री है, कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many other details. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3, then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.